चलो let's start. First, explain the significance of credit rating agencies in India and highlight the issues in their working. Credit rating agencies, CRA, क्या होती हैं credit rating agencies? When a company, suppose Flipkart is a company. Flipkart has to assess its value. What is the value of that company? How will Flipkart assess its value? Flipkart को लगता है कि मेरी वैल्यू $10 बिलियन है, मुझे लगता है फ्लिपकार्ट की वैल्यू $15 बिलियन है. वॉलमार्ट जिसको फ्लिपकार्ट को खरीदना है उसको लगेगा कि फ्लिपकार्ट की वैल्यू $5 बिलियन है, जिससे मेरे को कम से कम पैसा देना पड़े. सो देयर आर वेरियस entities which are going to assess a company differently. What is the fair value of the company? How would that company assess? That company would go to a consultancy, एक specified type की agency होगी. Consultancy होती है, बड़ी बड़ी consultancy हैं. McKinsey एक company है, दुनिया की सबसे बड़ी consultancy है. McKinsey, Goldman Sachs, BCG, Boston Consultancy Group, ये सब बड़ी बड़ी consultancies है. So these consultancies, what they would do is they would assess the value of this company. इस company की value assess करेंगे. ये होती है कंसल्टेंसी. कंसल्टेंसी का काम है कंसल्टेशन प्रोवाइड करना. आप उसके सामने क्वेश्चन पुट करो, आप उसके सामने जाके एडवाइस लो, एंड दैट कंपनी इज गोइंग टू एडवाइज यू ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर. दैट इज व्हाट अ कंसल्टेंसी डज. दिस इज वन. व्हाट इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड वेयर डज ऑल दिस थिंग फिट इनटू इट? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? नाउ फ्लिपकार्ट वुड वांट टू टेक लोन फ्रॉम समवन. फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, फ्लिपकार्ट को किसी से लोन की जरूरत है, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, वेयर हाउसेस खोलने हैं, डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, किसी भी पर्पस के लिए फ्लिपकार्ट को लोन की आवश्यकता है. नाउ फ्लिपकार्ट व्हेन इट वांट्स लोन, फ्लिपकार्ट वुड वांट टू टेक लोन एट चीपेस्ट कॉस्ट. मेरे को अगर लोन लेना है तो कम से कम ब्याज पे मिलना चाहिए. कंडीशंस ऑफ लोन शुड बी फेवरेबल टुवर्ड्स मी. कंडीशन जो मैं लोन की ले रहा हूं, मैं किसी से लोन ले रहा हूं, तो लोन मेरे को फेवरेबल कंडीशन में मिलना चाहिए, तभी मैं लोन लूंगा. So what are those conditions? Who decides those conditions? It is not a consultancy that will decide these conditions. Consultancy will decide what is my value. It is an independent agency, a credit rating agency, which will decide what is my credit rating. मेरी rating क्या है? Rating क्या चीज होती है? Rating is when I have to take loan, when Flipkart has to take loan, there would be an independent body, an autonomous organization, which would determine that what is the value of Flipkart, what is the track record of Flipkart in paying back the loans it took earlier, what is the current income of Flipkart, what is the expected income of Flipkart. If it takes a loan, what are the various options that it can exercise to take that loan? Would it be able to pay back that loan or not? In how much time would it be paying back that loan? If it takes loan, what would be the effect on its income? ये सब चीजें असेस करने के लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट एजेंसी है. उस एजेंसी को हम बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. So this agency, what it would do is, it would first lay down different categories of credit rating. ये बोलेगी अलग अलग कैटेगरीज हैं. सपोज एक कैटेगरी है A+, एक कैटेगरी है A, एक कैटेगरी है A-, फिर एक कैटेगरी है B+, इसी तरह B माइनस, फिर एक कैटेगरी है C+, C माइनस, D+, D माइनस. इस टाइप से अलग अलग कैटेगरीज ने बना दी. सो इसने बोला कि वन कंपनी विच हैज perfect track record in giving back all the loans that it took in the past. This particular company has huge growth prospects for future. This particular company has right now huge amount of income, and in future also its income is going to be very very high. So उसने बोला इस टाइप की कंपनी को हम A+ रेटिंग दे देंगे. अगर एक कंपनी ने कभी पास्ट में, जस्ट एन एग्जांपल, एक कंपनी ने पास्ट में कभी एक लोन पे 10 दिन का एक्सटेंशन मांगा होगा, 10 दिन का कुछ नहीं होता है, केवल 10 दिन का एक्सटेंशन मांगा होगा, तो उस टाइप की कंपनी को हम मान लो A रेटिंग दे देंगे. सो डिफरेंट types of ratings, and it lays down what are the different criteria that it would utilize, that it would assess in giving out a particular rating to a company. Based on this rating, what happens? अगर एक कंपनी की रेटिंग A+ है, एक कंपनी की रेटिंग A+ है, अब उस कंपनी को अगर लोन लेना होगा, अब उस कंपनी को लोन लेने के लिए सब लोग रेस में लग जाएंगे. Everyone would want to give loan to this company. Why? Because this company has perfect record. If I give my money to you, you will definitely return my money back.
on time, so therefore there is no chance that my money is going to be lost when I invest in you. So therefore everyone would like to give loan to this particular company. Because everyone is vying to give loan to this company, therefore this company has a lot of options. Now this company would negotiate, and therefore this company would get loan at the cheapest rate, at the best terms and conditions. Similarly, this company would also get loan at a really good rate, conditions which are really favorable to this. This company would get लोन एट अ वेरी हाई रेट एंड कंडीशन विच आर नॉट वेरी फेवरेबल टू इस कंपनी को तो हो सकता है कोई लोन दे ही ना, इस टाइप की कंपनी को डी वाली कैटेगरी को कोई लोन देता भी नहीं है. तो अब ये वाला जो काम है कंपनीज की रेटिंग देना, कंपनीज की रेटिंग देने का काम, दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो 3 अलग अलग एंटिटीज हैं. वन एंटिटी इज अ कंपनी, दिस इज अ डेटर. डेटर मतलब जिसको लोन लेना है. एक कंपनी है क्रेडिटर, सपोज कोई बैंक है जिसको लोन देना है. अब बैंक इस कंपनी को लोन देगा. बैंक जब इस कंपनी को लोन देगा तो बैंक इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग देखेगा. तो क्रेडिट रेटिंग किसने दी है? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने दी है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग दी है इसको. सो दिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विल डिटरमाइन व्हाट इज द क्रेडिट रेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एजेंसी, एंड बेस्ड ऑन दिस क्रेडिट रेटिंग दिस बैंक और क्रेडिटर इज गोइंग टू गिव लोन टू दिस एजेंसी. ये चीज क्लियर है कि नहीं? सो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई? इंडिपेंडेंटली अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काम कर रही है, इफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली इन एन ऑटोनॉमस मैनर, देन इट वुड बी एबल टू प्रोवाइड अ फेयर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. क्रेडिट रेटिंग फेयर का मतलब विच इज जस्ट, विच इज नॉट बायस्ड. अब ये क्रेडिट रेटिंग का काम किसका होता है? क्रेडिट रेटिंग करवानी है जिस कंपनी को लोन चाहिए. फ्लिपकार्ट को लोन चाहिए था तो फ्लिपकार्ट अपनी क्रेडिट रेटिंग करवाएगी. फ्लिपकार्ट जब अपनी क्रेडिट रेटिंग करवाएगी देन फ्लिपकार्ट विल पे फॉर इट्स क्रेडिट रेटिंग. अब क्रेडिट रेटिंग इंडिया के अंदर सपोज एक एजेंसी है क्रिसिल. क्रिसिल इंडिया के अंदर एक एजेंसी है जो क्रेडिट रेटिंग करती है. या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज देखें तो S&P है, जैसे एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक बैंक है, काफी बड़ा स्टैंडर्ड पुअर्स है. फिच एक करके क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. मूडीज है. So these are large credit rating agencies of the world. अब S&P से फ्लिपकार्ट को अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी है तो S&P को पैसा कौन देगा? फ्लिपकार्ट पैसा देगी. अगर फ्लिपकार्ट S&P को ज्यादा पैसा दे देती है तो S&P फ्लिपकार्ट की हो सकता है रेटिंग बेटर कर दे. क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट की रेटिंग आ रही थी B. फ्लिपकार्ट ने S&P को अच्छा पैसा दिया, फ्लिपकार्ट की रेटिंग कर दी उसने A-. अब फ्लिपकार्ट को बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, अब तो A लग गया आगे. सो अब फ्लिपकार्ट को काफी अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर लोन मिल जाएगा. फ्लिपकार्ट विल गेट लोन एट रियली गुड टर्म्स एंड कंडीशंस. व्हाई? बिकॉज इट पेड मोर मनी फॉर इट. So therefore, because it is this company which wants to get itself credit rated, this company would pay to this credit rating agency. It might compromise, and it does compromise, the manner in which credit rating agencies provide credit rating. It does compromise the fairness, the autonomy of this agency. Why? Because it is being paid to do this work by this company only, by this entity only. So what is the issue in working of credit rating agency? Issue in working of credit rating agency is that they are non-transparent in their working. They are not telling that how they are working. They are not letting you know that what is the criteria that they are using in order to judge credit rating of a particular entity. So उनकी जो नॉन ट्रांसपेरेंसी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, the very fact that they are being funded by the person who wants to get themselves credit rating, this puts a question mark on the integrity of the process. Clear? Is it clear? ये issues है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के. There is no regulation for credit rating agency. कंसल्टेंसी का आप रेगुलेशन एक हद तक कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रेगुलेशन ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि कंसल्टेंसी के अंदर एक प्राइवेट पार्टी डील कर रही है. कंसल्टेंसी में फ्लिपकार्ट को जब अपनी वैल्यूएशन करानी थी तब एक प्राइवेट पार्टी इज डीलिंग विद दैट कंपनी कि वॉलमार्ट को फ्लिपकार्ट को खरीदना तो कितने पैसे थे. मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट $5 बिलियन में खरीदे, 10 में खरीदे, 20 में खरीदे, मेरे को मुझसे क्या फर्क पड़ता है. लेकिन अगर फ्लिपकार्ट को लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिल गया जबकि फ्लिपकार्ट एक रिस्की कंपनी थी, तब लोन जो दिया जा रहा है वो मेरे पैसे से दिया जा रहा है. सो नाउ आई वुड बी वरीड दैट इफ माय मनी इज बीइंग पुट टू प्रॉपर यूज और नॉट. इज दिस क्लियर और नॉट? सो देयरफॉर their regulation is important and the regulation is not happening. They are working in a non-transparent manner. So this becomes the issue of credit rating agency. SEBI has recognized this particular thing, that
there is an issue in working of credit rating agency. SEBI has recognized और SEBI ने बोला है कि अब हम इनकी रेगुलेशन के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेके आने वाले हैं. First of all, we have to start with the manner in which they are rating companies. It should be made transparent. It should be made available to everyone. सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. So these are various अभी small steps हम ले रहे हैं, but in going forward we are going to take even more steps than this. Clear? Clear? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की फंक्शनिंग समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करना बहुत आसान है.